Paknoor Constituency Joint Secretary, EGPC Jammu has. And please give them a huge round of applause. And when the thundering claps. As a token, everyone, again give them a huge round of applause. And welcome. Qualities and strive to emulate. We are also celebrating the birthday of our beloved former Prime Minister, Shri Atal Bihari. Continue to inspire us. A statesman, a poet, and a visionary party. Parents, please appreciate your kids with thundering claps. जवानी गई एक पल तो अब हमें जीने दो मारा ही सही अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं हम है राही प्यार के My staff member and all the co-members and even students, heartily welcome to all. And Merry Christmas to you. All you know and well aware from the last 12 years hosts standing by side with us are very much aware that what we have achieved till and what we have to do within the few years. But before the starting of my annual report, I want to give heartily thankful to my parents who are the pillars and support to us, because without you, we can't do anything. Thank you so much. Honorable guest of the day, parents, students, teachers. I'm delighted to present the annual report and highlighting the achievements and milestones of Shubh International School for session 24-25. Before the starting of the session, we were having the vision of mind, and the vision was staying strong with concept learning and along with academics, along with the competitive. These steps and vision was achieved with us because in the 9th standard, we have started competitive and tie up with the physics wala. Our students in 9th standard are taking competitive along with academics, and this step has improved to you because we are preparing for annual day preparation from the last 1.5 months.
and no class and even the academics was not missing on a single day. You are very much aware with that, how much serious we are regarding the academics with our student. The changing in academics was made along with the curriculum activities, and we have started activity based, not with the theory based and the rote learning are happening in our school. Totally academics are doing with the activity based learning. And the resilience method has been introduced this year to us. The resilience method has definitely made the focus and the foster more positive results in terms of teaching with the students. In the starting the session, we have starting the Earth Day, in which our students distributing plants and saplings to the surrounding area of Aknur, and then we have celebrated Heritage Day in Aknur Fort and the Jayapota Ghat, where we show through the Nukkad Natak and aware our surrounding regarding the heritage and the earth and the global warming. Then we have celebrated Mother's Day, in which we are celebrating mothers and along with the mothers of our beloved SISites. I just have to do I think government has approved more than 243 working days for the session. But I believe our teachers and students are working 343 days in a year to do everything on the part, even on the Sunday too. We celebrate several significant events, including our annual culture festival, science fair, and one more thing we have introduced this year, that is charity drive for the helpage. And within a few days, we are starting old cloth donation drive too, that will benefit and keep the students in mind that we have to donating our beloved. If we are talking about the awards that we have achieved, from the last 5 consecutive years, school has been selected for the top 500 schools that has been given to us by the Brain Feed and that will given to us in the January month in New Delhi. Our students have shown significant talent in various co-curricular activities, including sports, music, and arts too. Tata company has do essay letter competition in our school, and which all schools have participated and compete with the whole nation. Olympiads are conducted time to time. Even online competition was conducted by Sri Chaitanya University, in which 80% of students participated. Painting competition was recently conducted by the Axis Bank of Aknur branch, and that was held with their head department. If I'm talking about the infrastructure in the facilities, और रणवीर जी चले गए और राकेश भारती, प्रोफेसर राकेश भारती जी, डॉक्टर जगोत्रा जी, सुशील जी और अशोक कुमार जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, डोगरी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, और सारे पत्रकार साथी मेरे और इस स्कूल का सारा स्टाफ, मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। और SHO अखनूर तारिक अहमद साहब ख़ास तौर पे ये जब से यहाँ आए हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, और मैं आभार प्रकट करता हूँ आपने मुझे समय दिया और ये इज़्ज़त दी, ये सम्मान दे रहे हैं। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ये स्कूल जो है ये दूर तक पहुँचे, अपनी बुलंदियों तक पहुँचे, और जैसे कि हर इंसान की एक कहानी होती है, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन की भी एक कहानी होती है, एक पार्टी की भी पीछे एक संघर्ष होता है। वैसे ही स्कूल की जब हम बात करें तो हम अंदर बैठे थे तो हम ये बात चल रही थी कि इस स्कूल की जो यात्रा है 12 साल उसको पूरे हो गए हैं, और किस तरह से 16 बच्चों से मैडम शिल्पा जी ने शुरू किया और आज कहाँ पहुँच गई। और इस चीज़ से एक प्रेरणा मिलती है कि इंसान अगर निष्ठा से, सच्चे मन से कुछ भी करे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा ही आता है, जो आज हमारे सामने है। और दूसरी बात, आखिरी बात मैं ये आप सभी से कहूँगा कि वो बात डोगरी भाषा को लेके है, तो वो बात मैं डोगरी में ही कहता हूँ। मैं ये आखना चाहना कि डोगरी भाषा जिहड़ी है वो साड़ी अपनी माँ बोली है, उसी बोलते कदे भी तुसें झिझकराना नहीं, मैं क्या आखदे उसी संकुचित नहीं होना, घबराना नहीं है, और कदे अपने आप च महसूस नहीं करना। कई लोग आखदे ना जेह्ड़े डोगरी बोलते वो ग्राई हो जाते हैं, वो पेंडू होंदे न। पंजाबियों कोलों बड़ा पेंडू कोई नहीं होना हिंदुस्तान च, लेकिन वो हर जगह पुज्जी दिन बुलंदियों च।
बड़ी दूर दूरी पुज्जी दे लेकिन डोगरी पंजाबी बोलते बड़ा फकर करते नहीं है कि कश्मीरी भी करते हैं, साउथ वाले भी करते हैं। तो डोगरी अपने बच्चे की कदर नहीं दरंडना कि डोगरी नहीं बोलो। और इस स्कूल की खासियत है कि ये स्कूल डोगरी की हमेशा प्रमोट करता है, अपने कल्चर की, चाहे वो डोगरी मान्यता दिवस हो है, चाहे 8th शेड्यूल वाला दिन हो है, चाहे कोई भी हो है, ये खासियत है। तो तुंदा सारे का मत धन्यवाद, शुक्रिया। कल में युवाओं को, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसे प्रोग्राम जो है हम सबके लिए एक अपने रूटीन के बोर्डम से जो है निजात पाने का एक ज़रिया भी है, और प्लस जो बच्चे हमारी नज़रों के सामने जिनको हम रोज़मर्रा के समय में इस रूप में नहीं देख पाते, तो हमें उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी काबिलियत जो है, उनका टैलेंट जो है, जो शायद घरों में नहीं दिखता है, तो पेरेंट्स भी शायद इन्हीं प्लेटफॉर्म पे दिख पाते हैं, जो एक अच्छा एफर्ट है, प्रयास है। और मैनेजमेंट में इसमें एनर्जी और अपना समय दिया है। जैसे मैडम ने बताया कि 1.5 महीने से कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्रयास बहुत ही जो है सराहनीय है, और ऐसे प्रोग्राम स्कूल्स में जो है रेगुलर होते रहना चाहिए। सर, युवा वर्ग को क्या कहना, जिस तरह से कहा आइकन माहौल है, ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज चलती रहती है, उसके साथ साथ ये अगर आप बात करेंगे खेलों की, वहाँ पे अगर युवा अपना बहुत योगदान दें तो बुराइयों से वो बच कर रह सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे युवा वर्ग को आप? बहुत बढ़िया। और जो आज के समय का सवाल है कि नौजवानों को जो है उनकी एनर्जी को कैसे टैप करें, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से भी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी, आप लोगों की तरफ से भी। आप इशू उठाते हैं और उसके बाद फिर इश्यूज़ को जो है समझा जाता है महकमों की तरफ से, और उसके लिए जो है वो यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम किए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रयास सरकार और इंस्टीट्यूशंस की तरफ से किए जा रहे हैं। सिविल सोसाइटी और सामाजिक कार्यकर्ता भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम भी एज ए ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन सिविक एक्शन प्रोग्राम करते हैं, स्पोर्ट्स का और डिबेट कॉम्पिटिशन्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, उसको भी हमारी तरफ से प्रोत्साहन देने की जो है कोशिश रहती है, और एक इकट्ठा प्रयास करके जो है नौजवानों को इस तरफ लाना है ताकि वो बुरी संगत में ना पड़े। और एवरी पर्सन इज़ अ स्पेशल, उसको सिर्फ और सिर्फ मौके की दरकार है। मौका जब मिलता है तो वो चमत्कार करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। का थैंक यू करूंगी कि आपने इतने पेशेंटली देखा, नहीं तो अदरवाइज मीडिया वाले तो 10 मिनट बैठते हैं, 15 मिनट बैठते चल पड़ते हैं। बट मैं देख रही हूँ फर्स्ट टाइम मेरे मतलब ये 7th एनुअल डे है, और पहला ऐसा एनुअल डे है यहाँ मीडिया पूरा इंजॉय कर रहा है। डैट मीन्स हम कुछ ना कुछ मैसेज तो दे ही रहे हैं। तो आपके मीडियम से मुझे हर अखनूर वालों को और जम्मू वालों को ये मैसेज देना है कि बच्चों के टैलेंट को लेके आना है हमें। कोई भी बच्चा कम नहीं है, हर बच्चे में कोई ना कोई कैपेबिलिटी है, और हर स्कूल का, हर पेरेंट्स का और हर टीचर का और एज ए मेडिएटर हर किसी का ये ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को कैपेबिलिटी को जज करके उसको आगे लेके आएँ, और जम्मू का जो टैलेंट है उसको आगे करें हम लोग। पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए जो इस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हो, अदर पेरेंट्स जो है जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके मीडियम से हर एक पेरेंट को ये मैसेज देना चाहूँगी, चाहे वो मेरे स्कूल के पेरेंट है, चाहे वो सराउंडिंग स्कूल के पेरेंट्स है, बच्चे को बच्चा रहने दे, बचपन मत छीने। ये बचपन ज़िंदगी में एक बार आता है, बचपन और जवानी एक बार आती है, तो बचपन को जीने दे। और ये बचपन, इस एज तक जो बच्चे जीते हैं वही लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई है, बट अगर इस एज तक हम एक बच्चों को एक लेवल में रख के उनको लाइफ के स्ट्रगल सिखा देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा आगे सुसाइड करने का भी सोचता है। मैडम, क्या क्या चैलेंजेस आए इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करने में आपको? देखिए सर, लाइफ ही चैलेंज है, और ये फील्ड तो वैसे ही चैलेंज है। चैलेंज हमारे आगे छोटा पड़ जाता है जब हम बच्चे को टैलेंट को हम आगे लेने का सोचते हैं। यही हमारा मीडियम रहेगा हमेशा। मैम, बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरे लिए बच्चों का ये मैसेज है कि यही फ्यूचर है हमारी कंट्री का, यही हमारी फ्यूचर जनरेशन को लीड करने वाले हैं, और यही हमारे नेशन बिल्डर हैं।